विस्तार से। एक बार फिर एक बेजुबान जानवर की बांस से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। रानीगंज के 93 नंबर वार्ड स्थित अशोक पल्ली निवासी संजीव चक्रवर्ती के खिलाफ वॉइसलेस संस्था ने शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि घटना के बाद से संजीव फरार बताया जा रहा है। बुधवार रात एक बार फिर एक बेजुबान की इतनी निर्दयता पूर्वक हत्या की गई कि देखकर रूह कांप जाएगी। रानीगंज के 93 नंबर वार्ड स्थित अशोक पल्ली इलाके के रहने वाले संजीव चक्रवर्ती के खिलाफ कुत्ते को बांस से पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। इस घटना को देखकर एक बार फिर कोलकाता के एनआरएस अस्पताल की घटना की याद ताजा हो गई। इस घटना को शायद ही कोई भूल पाया होगा, क्योंकि एक साथ 16 कुत्ते के बच्चे एनआरएस अस्पताल के बाहर एक बैग में भर्ती मृत पाए गए थे, जिसके बाद तो एक के बाद एक पशु प्रेमी और संस्थाएं आंदोलन पर उतर आई थी। यह आंदोलन कई दिनों तक चला था। रानीगंज शहर में भी संजीव चक्रवर्ती ने एनआरएस अस्पताल की घटना को दोहराते हुए बांस से पीट कर एक बेजुबान को मौत के घाट उतार दिया। उस कुत्ते की गलती बस इतनी थी कि लगातार हो रही बारिश की वजह से उसने संजीव चक्रवर्ती के घर आश्रय लेने की कोशिश की ताकि बारिश से बच सके, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस जगह को वो अपने लिए सुरक्षित महसूस कर रहा था, वही जगह उसके लिए काल बन जाएगी। कुत्ते को अपने घर के आसपास देखते ही संजीव चक्रवर्ती उसे बेतहाशा बांस से पीटने लगे। जब कुत्ता अधमरा हो गया तब जाकर संजीव को चैन आया, लेकिन उसकी पिटाई से बेसुध हुए बेजुबान जानवर ने आखिरकार आधी रात को दम तोड़ दिया। बुधवार रात जैसे ही इस घटना की जानकारी पशु प्रेमी वॉइसलेस संस्था को मिली, संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी ने संजीव चक्रवर्ती के खिलाफ रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। हालांकि घटना के बाद से संजीव चक्रवर्ती का कोई अता पता नहीं चल रहा है। लगातार बेजुबान जानवरों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए वॉइसलेस संस्था ने एक ठोस कदम उठाते हुए अब इन जानवरों की रक्षा के लिए रात के समय पहरेदारी करने का निर्णय लिया है। তো কুকুরটা মরে গেছে, কুকুরটা ডেথ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, উনি আসুন, তাহলে উনি আসুক, কথা বললো। এখন উনি আমি কী বলবো, উনি খাটাল আছে উনি কী করেন? খাটালে এই গরুর লাইনে ওপার কিষানপুরে। আপনার নাম? শিবান মণ্ডল। স্বাভাবিক না কেউ এর উপর মেরেছে? কেউ মেরেছে, বাস দিয়ে মেরে পরে কোমরটা ভেঙে দিয়েছে। কুকুরটা এখানে ছিল, আমাদের এখানে একজন সোমনাথ চ্যাটার্জি বলে আছে, উনি কুকুরটাকে সেফটি জায়গাতে রেখেছে যাতে জল ফল না পড়ে। কিছুক্ষণ কুকুরটাকে পর আমি বিস্কুট এনে দিলাম, তো বিস্কুট দেখলাম কি খায় না। কুকুরটা আস্তে আস্তে কোমরটা নিয়ে পরে এখানে এলো লালিটাতে, দিয়ে ওখানটাতেই ছিল, আর বিস্কুট খায় না। তারপর আস্তে আস্তে রান চলে যায়। অমানবিকভাবে যে মারাটা, এটা মানে কোন এরিয়াতে ঘটেছে? এটা রানীগঞ্জ শোকপল্লী কলোনি। এর জন্য আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিতে চাই, এর যাতে পরে কোনো পরবর্তী এমনি ঘটনা না ঘটে। কে বা তারা এরকম করেছে কিছু নলেজ আছে? আমি শুনেছি তো এখানে বোকা চ্যাটার্জি বলে একজন আছে, চক্রবর্তী, উনি কুকুরটাকে মেরেছে। বোকা চক্রবর্তী, ভালো নামটা জানা নেই, ওর বাবার নাম রঘুনাথ চক্রবর্তী। উনি কুকুরটাকে মেরেছে। এখানের বাসিন্দা, সামনেই থাকে। আপনার নাম? আমার নাম কার্তিক মণ্ডল। মৃত্যু নয়, এটাকে মানে এক প্রকার বলতে পারেন, যেটা কথা বলে যে একে মেরে ফেলা হয়েছে, অমানবিকভাবে অত্যাচার করে এরপরে একে মেরে ফেলা হয়েছে। কে বা তারা? হ্যাঁ, যা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আমরা এটা নিয়ে দেখছি কারা মেরেছে, আমরা চেষ্টা করছি তার জানার জন্য। খুব তাড়াতাড়ি জেনে নিতে পারবো আমরা যে যারা মেরেছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে সেরকম কোনো প্রমাণ আসেনি, প্রমাণ এলে আমরা তাকে এফআইআর করবো ঠিক করেছি। আমরা প্রথমত আজকে এটা বিকেলে আমি দেখলাম কুকুরটা এক জায়গায় পড়েছিল, সেটাকে কোলে তুলে আমি একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি সঙ্গে এলাকার ছেলেদের নিয়ে। তারপরে কুকুরটা কিছুক্ষণ আগে মারা যায়। না, এটা কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত, কারণ হচ্ছে আগামী দিনে যেন এই ধরনের পশুকে না হত্যা করা হয়। কারণ এই যে ভয়েসলেস এরা নিয়ে এত ভালো কাজ করছে আর শুধু এই শিল্পাঞ্চল জুড়ে, যে এদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। যে আমি ফোন করেছি, ফোন করার পরে ওরা একটা জায়গায় কাজে ব্যস্ত ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারা এসেছে,
তারা জানে আইন কানুনটা কী করতে হয়, তারা বাকিটা সমস্ত কাজ তারা করবে। আমরা তাদেরকে আমাদের সমর্থন থাকলো, আমার এলাকার সমর্থন থাকলো তাদের প্রতি। যে মেরেছে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে, এটা প্রশাসনিকভাবে যে আইনত যা ব্যবস্থা হয় সবটা নিতে হবে। কারণ আগামী দিনে যাতে এইভাবে অবলা জাতকে না কেউ হত্যা করে এটা আমাদের দেখতে হবে। কারণ এটা সমস্ত মানুষকে ধর্ম মানে জাতি ধর্ম পলিটিক্যাল সমস্ত কিছু নির্বিশেষ করে এটাকে আমরা সমস্ত মানুষ এক হয়ে এর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করবো। সোমনাথ চ্যাটার্জি, আমি এলাকারই বাসিন্দা। এটা হচ্ছে অশোকপল্লী। ঘটনা হচ্ছে এই দুদিন ধরে ভারী বৃষ্টি সব শহরাঞ্চল জুড়ে হচ্ছে। এই কুকুরটি বৃষ্টিতে না ভিজে নিজের আশ্রয় খুঁজছিল অশোকপল্লী একটা বাড়ির মধ্যে। তো ওই আশ্রয় খোঁজাটাই কুকুরটি অপরাধ। অশোকপল্লীর সঞ্জীব চক্রবর্তীর নামে এক ব্যক্তি, ওকে ওর উপর রাগ হিংসা বলুন বা ওর দোষ যে বৃষ্টি যাতে না ভিজে আশ্রয় খোঁজা সেটাও দোষ করে সেটা বলুন, কুকুরটাকে জঘন্যভাবে পিটিয়ে মারা হয়। তো আমরা স্থানীয় লোকরা এখানে প্রতিবাদও জানাই, আর তারপরে আমাদের কাছে খবরটা আসে, আমরা তৎক্ষণাৎ ওই স্পটে যাই, তো আমরা কুকুরটাকে মৃত পাই। তো আমরা এখন আইনে হাতে কুকুরটাকে তুলে দিয়েছি। তো এবার আইনে প্রসেসে চলুক। আমরা এফআইআর লিখিত অভিযোগ করেছি। আমরা চাই যেন দোষীর উপযুক্তমূলক শাস্তি হোক, আমরা এটাই চাই। এই জঘন্য কাজে যেন শাস্তি পায়, অ্যানিম্যাল ক্রুয়েলিটিটা বন্ধ হোক, আমরা এটাই চাই। তাই সেই বিরুদ্ধে আজকে আমরা থানাতে এসেছি। सौरभ मुखर्जी, प्रेसिडेंट ऑफ वॉइसलेस। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज शहर में हुई चोरी ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी रासबिहारी नंदी के घर से चोर चंदन के पेड़ की चोरी कर 9-2-11 को चले। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। रानीगंज का प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी रासबिहारी नंदी के बागान से मूल्यवान चंदन के पेड़ की चोरी कर ली गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। रानीगंज थाना में रासबिहारी नंदी और उसके नाती देवाशीष नंदी इस विषय में लिखित शिकायत दर्ज करवाए हैं। शिल्पांचल में लगातार बारिश हो रही है, ऊपर से लॉकडाउन भी है। ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत कम हो रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने मूल्यवान चंदन के पेड़ की चोरी कर डाली। शिकायत मिलते ही जांच में जुटी पुलिस ने रासबिहारी नंदी के बागान पहुंचकर वहां से चोरों द्वारा लाए गए सीढ़ी को बरामद किया। घर के लोगों का अनुमान है कि हो न हो ये किसी जान पहचान वाले का ही काम है, क्योंकि बाहरी लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारे बागान में चंदन का पेड़ लगा हुआ है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चोरी आखिर किसने की है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। তো সেইটা এইখানে রাত্রিবেলা চোরেরা এসে কেটে তাকে নিয়ে যায়। এবং সেই জন্য আমরা পুলিশের কাছে এই অভিযোগ দায়ের করেছি। দেখা যাক, আমরা আশা করছি পুলিশ এটা নিয়ে এখানে চোরেরা একটা সিঁড়ি নিয়ে এসেছিলেন, ওটা পুলিশে নিয়ে গেছে, ওটা দিয়ে ওরা নেমেছে। কি মনে হচ্ছে কারা এই চন্দন গাছ চুরি করতে পারে, কি মনে করছেন আপনি? যারা কাঠ কাটে তাদেরই কাজ হবে কিছুটা, তো কারণ আড়ি টাড়ি তো সবাইকার কাছে উপলব্ধ নয়। হ্যাঁ, জানা বলছি তো সেরকম কিছু বলা মুশকিল, তবে আমাদের গার্ডও ছিল, গার্ডেরা কিছু টের পায়নি। এইটা নিয়েও আমি পুলিশকে বলেছি। দেখুন, চন্দন গাছ তো আপনার বাড়িতে ছিল, এটা কেউ জান না, এখানে যারা কাজ করে তারাই একটু আধটু জানে। এমনি বাইরে আমরাও সে মানে চন্দন গাছ আছে, এবার অনেক পুরনো হলে শুনেছি 50-60 বছর হলে নাকি সেটা সেম হয়, এরকম আমরা শুনেছি। তো সেই জন্য অতটা মাথা ঘামাইনি যে কেউ কেটে নিয়ে চলে যাবে, এটা আপনার নামটা? আমার নাম দেবাশিস। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। लगातार हो रही बारिश ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। कई एकड़ जमीन में उपजी फसलें बर्बाद हो रही है। किसानों का आरोप है कि राजा बांध से 6 किलोमीटर तक कैनल जो बनाया गया है, इसकी मरम्मत नहीं होने की वजह से बारिश के समय अक्सर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों को एक बार फिर से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कई इलाका जलमग्न हो उठा है। रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत बल्लभपुर ग्राम पंचायत का नुपुर ग्राम में लगभग 150 से 200 बीघा में लगे फसल पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रानीगंज के राजा बांध से 6 किलोमीटर तक गए एक कैनल नुपुर गांव होते हुए दामोदर नदी में जाकर उसका पानी गिर रहा है।
किसानों का कहना है कि जो कैनल बनाए गए हैं उसकी मरम्मत न होने की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नुपुर गांव के किसान उदयपाल असीत गोराई ने बताया कि उनकी जमीन में भिंडी, बरबट्टी, लौकी, खीरा, कुमड़ा और परवल लगाया गया था, जो अब पूरी तरह से बारिश की वजह से नष्ट हो चुका है। उनके खेतों में पानी भर चुका है। अब उनके सामने अगले 3 महीने तक भूखमरी की नौबत आ खड़ी हुई है। बारिश की वजह से उन्हें हजारों रुपए के नुकसान हुए हैं। अभी जो फसल बची हुई है उसी को बचाने में किसान पानी में डूबकर किसी तरह पानी निकालने में लगे हुए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन को बार बार जानकारी देने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकाला गया है। नुपुर गांव के कृषक सभा के नेता मलय मंडल ने बताया कि नुपुर गांव से जो कैनल निकाली गई है उसके मरम्मत को लेकर रानीगंज बीडीओ को ज्ञापन भी दिया गया है। साल 2011 के बाद से कैनल की मरम्मत नहीं करवाई गई है, जिसकी वजह से हर साल बारिश के समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। वहीं वीडियो अभीक बैनर्जी ने कहा कि कैनल की मरम्मत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। NRGS योजना के तहत कैनल मरम्मत का काम शुरू किया गया है। वहीं जिन किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी सूची एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी द्वारा बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें मुआवजा राशि सरकार से मिल सके। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष पश्चात इस तरह की स्थिति बनी है। ये भी देखा जा रहा है कि जिन किसानों का फसल बीमा योजना अंतर्गत नाम मौजूद है उन्हें बीमा राशि मिल सके। इसके लिए पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। बता दें कि 45 से 50 किसानों का फसल पानी में डूबकर नष्ट हो रहा है। इस फसल की कीमत लाखों में होगी। বর্ষায় কতটা জমি নষ্ট হয়েছে? আমাদের এলাকায় প্রায় 250-300 বিঘা জমি, যে রাজনগরের জলটা যে নালা দিয়ে আসছে সেই নালাটা সংস্কার যেমনটি দরকার না হওয়ার ফলে জল ধারণ ক্ষমতা আর নব্যতা কমে গেছে, যার ফলে একটুখানি বৃষ্টি হলেই 1-1.5 ঘন্টা বৃষ্টি হলেই আমাদের এলাকায় যে কৃষি এলাকা সেই এলাকায় কৃষকদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ধানের যে কোনো বীজ ফেলা আছে সেই বীজগুলো জলে থাকছে, তার সঙ্গে সবজি যেমন নেনুয়া, ভেন্ডি, বরবটি, করলা, এমনকি শশা, লাউ সেগুলো জলে তলায় চলে যাচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এটা লক্ষ্য করেছি। বিভিন্নভাবে আমরা মানুষের সাথে সাথে আমরা যারা কথা বলেছি ভিডিওকে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি, তবুও যেটা কাজের কাজ সে কাজটা এখনো পর্যন্ত হয়। মানুষের সর্বনাশ হতেই চলছে। আজকে যেদিকে করোনা মহামারী, তার সঙ্গে আবার এই বৃষ্টি, একটুখানি বৃষ্টি হলে রাজারবাগ থেকে নুপুর হয়ে দামোদর পর্যন্ত যে দীর্ঘ 6 কিলোমিটার সেচ নালা রয়েছে, সেই সেচ নালার পরিকল্পনা অভাবে, সেচ নালার মানবিক সংস্কারের অভাবেই প্রতি বছর অসংখ্য প্রভাবিত হচ্ছে। প্রায় কয়েকশো বিঘা জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, ফসল নষ্ট হয়েছে। নুপুর গ্রামের প্রায় 70 থেকে 80% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। তারা কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। ফলে প্রতি বছর এরকম সমস্যা হলে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ছে কৃষকরা। আমরা সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে রানীগঞ্জের ভিডিওকে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। আমরা বলেছি যে এই रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। बारिश की वजह से आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड में जल जमाव हो गया, जिसमें एक पिकअप वैन गुरुवार पूरी तरह डूब गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह वैन को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन स्थानीय लोग इस स्थिति पर ठोस कदम उठाने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों का अब हाल बेहाल हो चुका है। तपती धूप और गर्मी से एक तरफ जहां लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर वही राहत उनके लिए अब मुसीबत बनकर सामने आ गई है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 59 में कुछ ऐसा जल जमाव हुआ है कि उस जल जमाव में रास्ता पार करने के चक्कर में एक पिकअप वैन बारिश के पानी में देखते देखते ही डूब गई। हालांकि इस घटना में पिकअप वैन चालक की जान बच गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद पिकअप वैन को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम को इलाके में घटित हुई घटना की सूचना दी, पर सही समय पर मदद नहीं मिलने के कारण इलाके के ग्रामीणों ने खुद ही इलाके की बिगड़ी हालत को सुधारने के लिए मोर्चा खोल दिया है और जल जमाव को निकासी करने का काम करते हुए टूटी सड़क को ईंट और पत्थरों से भरने का काम कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने नगर निगम प्रशासन से गुहार लगाई कि वो जल्द से जल्द इलाके की स्थिति की सुधार के लिए कोई ठोस कदम उठाए।
ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इलाके की स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि लोग कहीं भी आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। मोटरसाइकिलों को धक्का देकर पार करना पड़ रहा है। 4 पहिया वाहन तो आना जाना अब पूरी तरह से बाधित हो गया है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कोरोना काल में किसी भी तरह अगर कोई मरीज हो तो उन मरीज को वो कैसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाएंगे, ये अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मौके पर गौरांग गोपाल, सपन मुर्मू, बोबाई दे, सागर दे उपस्थित थे। क्या हुआ है यहाँ पर? हम लोग पुराचौक ग्राम का बासिंदा है। देखिए यहाँ का टाटा एसी फंसा है। यहाँ का तृणमूल सरकार 10 साल राज किया, अभी वहाँ पुराचौक में कुछ काम नहीं किया। यहाँ रोड पूरा एकदम टूटा है। हम लोग का आने जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है। खाली 2 चक्का से मैंने 4 चक्का नहीं जाएगा। ऐसे हम लोग का मैंने रात में आने जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है। जैसे सरकार ये वाला जल्दी कुछ व्यवस्था करेगा। अगर हम लोग का कोई गांव में कोई भी अगर आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के कल्ला मोड़ के पास भुड़भुड़िया नदी के किनारे बना खटाल बारिश की वजह से गिर पड़ा। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खटाल में रहने वाले लोगों के सामने अब रहने की दिक्कतें आ रही है। इन पीड़ित परिवार के पास राजद नेता पहुंचकर मदद का आश्वासन दिए हैं। आसनसोल नगर निगम वार्ड संख्या 30 के बाईपास रोड कल्ला मोड़ के पास भुड़भुड़िया नदी के किनारे नागेश्वर यादव का खटाल लगातार बारिश होने की वजह से अचानक पूरी तरह से गिर गया। हालांकि इसमें किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खटाल गिर जाने के कारण पशुओं को और उसमें रहने वाले खटाल मालिक नागेश्वर यादव और उनके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद राजद नेता और आसनसोल सीमांचल के वरिष्ठ अधिवक्ता नंद बिहारी यादव खटाल के पीड़ित परिवार नागेश्वर यादव से मिलने पहुंचे और गिरे हुए खटाल का निरीक्षण कर उनकी समस्याओं को सुना। समस्या सुनने के बाद पीड़ित को हर तरह से सहयोग करने का आश्वासन देते हुए कहा कि ये आपदा की घड़ी है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसमें अक्सर ही कच्चे मकान ढह जाते हैं। इस तरह से आपदा में हुई क्षति को पूर्ति करना राज्य सरकार का दायित्व होता है। उन्होंने नागेश्वर यादव के खटाल का पुनर्निर्माण और उनको सहयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और आसनसोल के उत्तर के विधायक और माननीय मंत्री मलय घटक को सूचित करने की बात कही। ये तो देखिए खटाल है नागेश्वर यादव का, ये हमको जैसी सूचना मिला थी कि इनका खटाल कल पानी के बरसात के कारण गिर गया। ये एक तरह से आपदा है। आपदा में सरकार की तरफ से जो मुआवजा होता है वो दिया जाता है, क्योंकि हम जिस संगठन से जुड़े हुए हमारे अपने परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और इनकी बात हम सुने हैं। और ये सारा चीज़ देखने के बाद हम पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मंत्री महोदय को हम इस बात को पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे खटाल वाले भाइयों का इसका मुआवजा इनको मिले और इनके खटाल को फिर से बनाया जाए। ये हमारा पूरा प्रयास है। इसके साथ ही साथ खटाल का जो मैटर है, खासकर आसनसोल नगर निगम में सारे खटाल वालों ने, हम लोगों ने इस सरकार को बनाने में काफ़ी मदद किया है। हमारे सारे खटाल के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, उनकी सरकार है। और हम चाहेंगे कि इस बार नगर निगम के द्वारा खटाल वालों के लिए उचित गोपालन का, पशुपालन का, रख रखाव के लिए सारी व्यवस्था किया जाए। पशुपालन विभाग जो सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार का जो राज्य सरकार का मंत्रालय है, वो सारी सुविधाएं इनको मुहैया कराएं। और विशेषकर इस खटाल के लिए अभी हम तुरंत हम जो सरकारी सूत्रों से हम बात करें। आपका नाम? आइए, नंद बिहारी यादव। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कुंडी के लोगों ने राशन में हो रही घोटालेबाजी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने के साथ राशन विभाग कार्यालय में शिकायत की है। लोगों ने आरोप लगाया कि राशन दुकानदार हमें राशन ना देकर कालाबाजारी कर अपना जेब भर रहे हैं। सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को निर्धारित राशन नहीं दिए जाने के कारण महिलाओं ने कुल्टी राशनिंग कार्यालय में शिकायत की। राशन कार्ड धारक कुंती देवी शर्मा ने बताया कि हमारे परिवार में 9 सदस्य के लिए 9 कार्ड है, लेकिन फिर भी हमें राशन नहीं दिया गया। जबकि कुल्टी रानी तालाब के रहने वाले एक परिवार में सिर्फ 3 सदस्य हैं, इसके बावजूद भी उन्हें राशन दिया जा रहा है। वहीं पटियाला मोहल्ला निवासी जाहिद खान ने बताया कि उनके पास 5 राशन कार्ड है, लेकिन उन्हें मात्र 2 राशन कार्ड के हिसाब से ही राशन मिल रहा है। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राशन दुकानदार द्वारा राशन कार्ड धारकों को राशन में कटौती की जा रही है।
राज्य सरकार की ओर से सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कुछ राशन दुकानदार कार्ड धारकों के मिलने वाले राशन में कटौती कर कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। इसे लेकर जांच की जानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मांग को लेकर राशनिंग ऑफिस में काफी लोगों ने शिकायत की है। वहीं इस विषय पर राशनिंग विभाग के अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही इसकी जांच की जाएगी। का कार्ड था 9 रुपया का था, तो 3 आदमी में राशन दिया, 3 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल, और 6 आदमी का राशन नहीं दिया। मेरा यही समस्या है। तो इस विषय में आपका कौन डीलर है? मेरा डीलर ने, हम तो भाई वहाँ पर गए तो राशन 60 बोला कि आप जाकर वहाँ पर बात कीजिए। तो हम यहाँ पर आए। डीलर कौन है आपका जहाँ से आप राशन लेती हैं? और 60 के यहाँ से हम राशन लेते हैं। कहाँ, कौन जगह में? यही तो रानी तालाब। तो वहाँ पर आप बोलने पर तो क्या बोले? तो वो बोला कि जाकर वहाँ से बात कीजिए यहाँ पर। हाँ, वीडियो ऑफिस में। वही हम आए, कल हम आए थे, तो कल बंदी था, कल जमा 60 का, तो फिर हम आ जाए। तो आज जो आप आए हैं तो यहाँ कुछ बात हुआ वीडियो ऑफिस में? अभी बात नहीं हुआ, और सब यही समस्या है सबका। इस महीने से आप लोगों का राशन में ऐसा हो रहा है कि हमेशा? इसी महीना से हो रहा है सबको। इसी महीना से, अगले ठीक ही मिलता था, अभी इसी महीना से सबका समस्या हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम कुंती देवी शर्मा। कहाँ रहती हैं? कुल्टी थाना में। मेरा हस्बैंड का मृत्युंजय शर्मा। मेरा BPL कार्ड था, उसका बाद हमको 13 रुपया अलग किया। 13 रुपया अलग कार्ड में 2 आदमी का उड़ा दिया, 3 आदमी का उड़ा दिया, 2 आदमी का राशन दिया। BPL से 13 किया, 13 से 3 आदमी का। क्या मैंने, क्या समस्या क्या है? अभी आप जो आए हैं, राशन नहीं दे रहा। क्यों राशन नहीं दिया जा रहा? 3 आदमी को राशन नहीं दे रहा। 5 आदमी का कार्ड में 3 आदमी को नहीं दे रहा, 2 आदमी का दिया है। 4 किलो। आपके पास क्या 5 गो राशन कार्ड है? 5 गो राशन कार्ड है, इसमें 3 आदमी को दे रहा है, 2 आदमी को दे रहा और 3 आदमी को नहीं मिल रहा। 3 आदमी को नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इससे आप बात किए? कैंसिल कर दिया है वो डीलर। आपका डीलर कौन है? सलीम अंसारी। और किस वार्ड में आपका राशनिंग है? ये राशन लेते हैं जहाँ? पटियाला आजाद नगर 63 नंबर। तो ये समस्या जो है चल रहा है, कितना दिनों से चल रहा है? ये अभी फर्स्ट मरतबा किया है। आपका परिचय? जाहिद खान। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। बराकर के आरा डंगाल में हुए भूस्खलन के बाद पीड़ित परिवार समाज सेवी बबलू अंसारी के नेतृत्व में नगर निगम प्रशासक से मिलने पहुंचा। इस दौरान समाज सेवी ने पीड़ित परिवार के घरों के मरम्मत के काम में तेजी लाने की अपील की है। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत बराकर आरा डंगाल वार्ड नंबर 67 में भूस्खलन हुआ था, जिसमें 7 परिवारों को काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद आसनसोल नगर निगम प्रशासक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा के पहल पर उन लोगों को रहने के लिए BCCL द्वारा क्वार्टर मुहैया करवाया गया है, लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि समय बीतता जा रहा है और उन लोगों को क्वार्टर केवल 1 वर्ष के लिए ही मुहैया करवाया गया था। तो उनकी गुजारिश है कि नगर निगम प्रशासक उनके घरों में जो क्षति हुए हैं उसे किसी प्रकार देखे और पूर्ण रूप से मरम्मत कराने में उनकी सहायता करे। जिस स्थान पर भूस्खलन हुआ है वहां पर BCCL द्वारा अच्छे तरीके से बालू भराई का काम किया जाए। BCCL द्वारा बालू भराई का काम तो किया गया है, लेकिन उसमें काफी त्रुटियां हैं। इसलिए उन लोगों की मांग है कि भराठी का काम अच्छे तरीके से प्रशासक करवाए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। जामुड़िया ब्लॉक 2 के श्यामला अंचल युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से खुट्टाडी कम्युनिटी हॉल में गुरुवार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। जामुड़िया ब्लॉक 2 के श्यामला अंचल युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से खुट्टाडी कम्युनिटी हॉल में श्यामला ग्राम पंचायत के सदस्य सोमनाथ मंडल के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित जामुड़िया के नव निर्वाचित विधायक हरेराम सिंह, जामुड़िया ब्लॉक 2 के सभापति सुकुमार भट्टाचार्य, चिचुड़िया ग्राम पंचायत के प्रधान विश्वनाथ सांगुई, श्यामला ग्राम पंचायत के प्रधान श्यामली मंडल दिनेश चक्रवर्ती और अन्य नेता उपस्थित थे। इस रक्तदान शिविर में करीबन 100 युवा तृणमूल समर्थकों ने अपना रक्तदान कर कार्यक्रम को सफल बनाया। दुर्गापुर विवेकानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर और रानीगंज BN अग्रवाल के डॉक्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आदेश है कि इस कोरोना काल में हम लोगों को सब काम छोड़कर सिर्फ जनता के पास रहना है और उनकी मदद करना है। इस कोरोना काल में कोई भी ऐसा व्यक्ति
रक्त के अभाव में ना मरे, इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी जगह रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस रक्तदान शिविर में 100 लोगों ने अपना रक्तदान किया है और आगे भी लोग मदद के लिए इसी तरह आगे आते रहेंगे। वंदे मातरम। रक्तदान शिविरे मंचे उपस्थित ब्लॉक हुए प्रेसिडेंट भाई सुकुमार, भाई सिद्धार्थ आছেন, লালটু আছেন, আমাদের দিনেশ আছেন, উত্তম আছেন, বহুজন আছে। সবাই নাম আমি লিখছি না, সময় নাই, সামনে আপনারা আছেন। দেখুন আজকে খুব ভালো লাগছে এইখানে এসে। আমাদেরকে দিদি নির্দেশ দিয়েছে এই করোনা কালে সব কাজ ছেড়ে তোমাদেরকে মানুষ কাছে যেতে। ঠিক আছে, এটা কি পুরো জামুড়িয়া অঞ্চল জুড়ে বা জামুড়ি বিধানসভা জুড়ে হচ্ছে? দেখো রক্তদান শিবির এখন পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জামুড়িয়া বিধানসভাতে 2টি ব্লকেই রক্তদান শিবির হচ্ছে। আজকে 12 নম্বর এখানে হচ্ছে, কালকেও আমার ফুটাটি আমার তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকর্তাগুলো রেখেছে। সেই জন্য আমি আজকে এখানে যে ব্যবস্থা করেছে আমার যুব তৃণমূল কংগ্রেস, তাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। রেকর্ড করেছে 100 জন এখানে ব্লড দিল, বুঝলে। এখন দিদি নির্দেশ দিয়েছেন করোনাকালে অন্য কাজ ছাড়া আমাদেরকে মানুষ কাছে দাঁড়াতে হবে, কার কী অসুবিধা আছে ও দেখতে হবে। কেউ ব্লড জনে মারা যায় না, সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। যার ব্লডের দরকার আমরা ব্লডের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, যার খাবার দরকার, রাশন নাই, আমি রাশন আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, মাস্ক বিলে করছি, तमाम যে করোনা কালে দরকার আমরা করছি। আমি মানুষকে আপিল করছি আপনাদের মাধ্যমে, এই করোনা কালে যে সরকারি নির্দেশ আছে নির্দেশটাকে পালন করতে হবে, আর সবাই পালন করবে, তাহলে আমরা ভালো করে থাকবো, এই করোনা কাল পার হয়ে যাবে। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। चोरी कर फरार हो रहे 3 अपराधियों को बांकुड़ा पुलिस ने कोतुलपुर से धर दबोचा। इन लोगों के पास दुकान काटने की कई मशीन बरामद की गई है। फिलहाल तीनों को विष्णुपुर अदालत में पेश किया गया। चोरी कर फरार हो रहे 3 अपराधियों को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। घटना बांकुड़ा के कोतुलपुर इलाके में घटित हुई है। गुरुवार सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी कोतुलपुर थाना इलाके से चोरकोला बाजार में एक मोदी खाना दुकान को लूटने के उद्देश्य से पहुंचे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी कर फरार हो रहे चोरों को आखिरकार धर दबोचा। पुलिस को जैसे ही लूटपाट की जानकारी मिली, वैसे ही कोतुलपुर थाना की पुलिस ने हर एक नाका चेकिंग में पुलिस को सतर्क रहने का आदेश दिया। इसके साथ ही आसपास के थानों में भी सूचित किया ताकि अपराधी भागने में कामयाब ना हो पाए। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से दुकान काटने के विभिन्न यंत्र बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इस गिरोह ने लूटपाट की बात को भी स्वीकार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये गिरोह कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गुरुवार इन अपराधियों को विष्णुपुर अदालत में पेश किया गया। সকালবেলা 7টার সময় দোকানগুলো দেখেছি, আমার দরজা কাটা, জানলা কাটা সেটা ঢুকেছে। মালপত্র পরিস্থিতি করে আছে, কিছু মাল দেখতে পাচ্ছি না, 10 টাকা কিছু লিখে লেখা আছে। আমি কালকে তো ছেলে বিকেলে যে ছেলে ছিল 10 টাকা বানিয়ে কিছু 4 টাকা বানিয়ে রেখেছিল, 1000 টাকা রেখেছিলাম, 1000 টাকা আর কিছু আগের কিছু থাকে বলে বই বোনা থাকে না, সব ভুসি মালা মোদি খানা চোরকলা মোড়। সকালে দোকান খুলতে এসে তারপরে জানবো, কাল রাত্রে পড়েছে গতকাল। আমি দেখা দেখি করতে করতে আমার এই থানা বড় ওদিকে রাউন্ড এসেছিল,
আমরা জিজ্ঞেস করতে বলছি হ্যাঁ আমার বহু দেখেছে শশাঙ্ক রায় शशांक राय। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अलका। माकपा की ओर से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी, रोजमर्रा के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी, रोजमर्रा के सामान की कीमतों में असामान्य वृद्धि, दवाओं और अन्य वस्तुओं की कालाबाजारी, कोरोना रोग में उपयोग की जाने वाली सभी उपचार वस्तुओं पर GST को वापस लेने की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। माकपा की ओर से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी, रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में असामान्य वृद्धि,
दवाओं और अन्य वस्तुओं की कालाबाजारी, कोरोना रोग में उपयोग की जाने वाली सभी उपचार वस्तुओं पर जीएसटी को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुरुवार को शहर के सागरभंगा पेट्रोल पंप पर कोरोना नियमों के अनुपालन कर माकपाइयों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर माकपा नेताओं ने कहा कि पार्टी की केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर पूरे देश भर में प्रदर्शन किया गया, जो कि आने वाले 30 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नतीजे आने के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। फैक्ट्री के पुर्जों के साथ साथ सामान, दवाओं और अन्य सामानों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। मोदी सरकार कोरोना रोग के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी चिकित्सा वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आम आदमी पर दबाव बना रही है, जिससे लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ गई है। महंगाई से लोग परेशान हैं। यह प्रदर्शन कोरोना नियमों का पालन करते हुए करीब 30 मिनट तक चला। বিক্ষোভটা আমাদের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত বাম দলগুলোকে নিয়ে গত 16 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে আন্দোলন, চলবে 30 তারিখ পর্যন্ত। এখন আপনারা ইতিমধ্যেই দেখেছেন যে এই ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের রেজাল্ট ঘোষণা হওয়ার পর আমরা দেখলাম প্রায় 21 বার হচ্ছে পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছে। তার সাথে সাথে কারখানার যে যন্ত্রাংশ তার উপর তার দামগুলো বেড়েছে। বিভিন্ন শাক সবজি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তার দাম বেড়েছে। একদিকে মোদি গভর্নমেন্ট মানুষের স্বার্থের কথা বলছে, মানুষের হয়ে কাজ করার কথা বলছে, সবার বিকাশের কথা বলছে, কিন্তু আলটিমেট যা দেখা যাচ্ছে যে মানুষের উপরে যে চাপ তৈরি করা হচ্ছে, যে ধরনের নীতি তারা গ্রহণ করেছে, 7,500 টাকা করে দিতে হবে দাবি আমরা করেছি। আমরা বলছি যে পেট্রোল ডিজেলের দাম কমাতে হবে। আমরা বলছি যে জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ানো হয়েছে, কারখানার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যেভাবে বাড়ানো হয়েছে সেগুলো কমাতে হবে। সমস্ত শুল্ক যা লাগু হয়েছে সেই শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। আমরা এই দাবি নিয়ে 30 তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিক পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে, বাম দলগুলোর আহ্বানে এই কর্মসূচি চলছে। তার প্রতীকী কর্মসূচি হিসাবে আমরা আজ পেট্রোল পাম্পে যে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। কতক্ষণ ধরে চলবে? চলবে 8 ঘন্টা ধরে আমাদের এই কর্মসূচি চলবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के 4 नंबर वार्ड अंतर्गत नागार्जुन रोड के नतुनपल्ली बस्ती इलाके में बुधवार की देर संध्या दर्जनों भाजपा समर्थक हुए तृणमूल में शामिल। दुर्गापुर शहर के 4 नंबर वार्ड अंतर्गत नागार्जुन रोड के नतुनपल्ली बस्ती इलाके में बुधवार की देर संध्या दर्जनों भाजपा समर्थक तृणमूल में शामिल हुए। मौके पर दुर्गापुर नगर निगम के मुख्य सचेतक सह पार्षद स्वरूप मुखर्जी उर्फ पवित्रदा, प्रसन्नजीत चक्रवर्ती सहित कई नेतागण मौजूद रहे। पार्षद ने सभी लोगों को तृणमूल का झंडा थमाकर उन्हें तृणमूल में शामिल किया। আমরা নিজেদের মনে ইচ্ছেতে আমি একা বলে না, আমাদের দুটো পাড়া আছে, নেপালি পাড়া হলো, জয় পাড়া হলো, তার নিজের মনে 4 নম্বর ওয়ার্ড স্বরূপ মুখার্জি উপরে পবিত্রদার সমর্থন দিচ্ছি। আজ থেকে তোর আগে বিজেপি করতিস? আগে আমরা বিজেপি করতাম, এখন তো তৃণমূল পার্টিতে যোগ করলি। আর ডেট থেকে এখনের টাইম থেকে আমরা পবিত্র হাত থেকে তাহলে তোদের পতাকা তুলে দিচ্ছি। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, মানুষ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, পবিত্রদা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, পবিত্রদা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, স্বরূপ মুখার্জি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আগামী দিন 4 নম্বর ওয়ার্ডে পবিত্রদাকে আমরা বিপুল ভোটে জয় করে জয় করব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के तहत 43 पत्थर से लदे ट्रक को कोकोवेन थाना की पुलिस द्वारा रोका गया तथा इसके विरुद्ध भारतीय संविधान की धारा 379, 411, 188, 34, 51B के तहत मामला दर्ज कर अपराधियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। वहीं सभी गाड़ियों के थाना के समक्ष रास्ते के किनारे रखे जाने से लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही है। कोरोना नियम का उल्लंघन करने के तहत 43 पत्थर से लदे ट्रक को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कोकोवेन थाना की पुलिस ने रोका। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले दुर्गापुर बैरेज से यह सभी ट्रक को पकड़ा गया था। वीरभूम रामपुर हाट से पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर के विभिन्न जगहों पर जा रही थी। यह पत्थर से लदी गाड़ियां पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड का नियम उल्लंघन कर यह गाड़ी चलाई जा रही थी। प्रशासनिक नियम के तहत नहीं था।
इन लोगों के पास कोई कागजात भी नहीं थे। पुलिस की तरफ से गाड़ी चलाने के लिए जो ई पास दी जाती है वह भी इनके पास से बरामद नहीं हुआ, जिसके कारण दुर्गापुर बैरेज से कोकोवेन थाना की पुलिस ने अभियान के तहत 43 गाड़ियों को जब्त किया। আমাদের পুলিশ নিয়ে এসছে এখানে বিষ্ণুপুরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, পুলিশ আমাদের অফিসারকে মেরেছে। এখন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ছাড়ছে না গাড়ি, পাথর গাড়ি কোনো ছাড়া যাবে না, ছাড়ছে না। এইটা কি কেস দিয়েছে তোমাদের? এটা আমাদের আজ কালকে যেটা বলেছে, এটা তোমার এই লকডাউনের জন্য গাড়ি আমরা যে নিয়ে এসছি, আর চুরিয়া মাল আমাদের চুরিয়া মাল। কিন্তু চুরির মাল কি না কাগজপত্র? কাগজপত্র সব ওকে, মাল পাথর এখন চুরি আছে নাকি? ওভারলোড আছে গাড়ি, মাল ওভারলোড আছে। এবার হচ্ছে যে এর জন্য পুলিশকে পয়সা দিতে হতো। হ্যাঁ, পয়সা তো দিতে হতো, সব জায়গায় তো পয়সা দিত, সব জায়গায় 150, যে যেরকম মানে যার যেরকম গাড়ি সেরকম নিয়ে যেত। পুলিশ রাস্তায় পয়সাও নিত? হ্যাঁ, পয়সা নিত না। কত করে নিত? 100, 150, কোথায় 50 বলে দিয়ে যেতাম আমরা। তো তারপরে এই কেস দিয়েছে, কতগুলো গাড়ি আছে? এখানে আছে 45খানা গাড়ি। ব্যারেজেও টাকা নিয়েছিল না? ব্যারেজে টাকা নেয়, ব্যারেজে টাকা নেয়। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে বুলুজিৎ। বলে দাও, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, কি অবস্থা, কি দেখছেন? কি দেখছেন রাস্তায়? রাস্তায় দেখছি মানে লরি দাঁড়িয়ে আছে সার দিয়ে, কেন দাঁড়িয়ে আছে জানি না, তবে মানুষজনের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে, এটা ন্যারো রোড, এইটাই দেখছি। তারপর বৃষ্টিও তো হচ্ছে। হ্যাঁ, বৃষ্টিও হচ্ছে, এখন বৃষ্টি বন্ধ আছে। হ্যাঁ, দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা তো থাকছে। হ্যাঁ, দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকতে পারে যে কোনো সময়, গাড়ি চালাতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সমীরণ দা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बंगाल के विरोध में फिर केंद्र में बैठी सरकार। बंगाल में चुनाव हारने के बाद बंगाल के विरोध में तानाशाही शासन कर रही है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कोलकाता में अपने कच्चे माल के डिवीजन मुख्यालय को बंद कर उसे स्थानांतरित किए जाने के विरोध में दुर्गापुर स्टील प्लांट गेट के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। बंगाल के विरोध में फिर केंद्र सरकार में बैठी भाजपा सरकार बंगाल में चुनाव हारने के बाद बंगाल के विरोध में तानाशाही शासन कर रही है। एक तरफ राज्यपाल बंगाल को लेकर अनाप शनाप बक रहे हैं, तो वहीं राज्य की मुख्यमंत्री के साथ उनका टकराव और भी बढ़ता जा रहा है। केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार अब बंगाल में जनता के द्वारा वोट से जीती गई तृणमूल सरकार को 365 धारा का प्रयोग कर गिराने का सपना देख रही है। ऐसा ही आरोप तृणमूल के साथ साथ भाजपा विरोधी दल द्वारा भी लगाया गया है। वामफ्रंट के चेयरमैन विमान बासु ने राज्यपाल के आचरण पर बोलते हुए कहा कि राज्यपाल बीजेपी के प्रतिनिधि होकर काम कर रहे हैं और कहा कि फिर बंगाल के विरोध में एक सिद्धांत सेल को लेकर लिया गया है, जिसे लेकर राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय पेट्रोलियम इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी पत्र लिखकर सेल के बोर्ड को फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही आज सुबह दुर्गापुर स्टील प्लांट के गेट के समक्ष INTTUC की ओर से कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिक नेता जयंतो रक्षित ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को खत्म करने में लगे हुए हैं। पहले एलॉय स्टील प्लांट को निजीकरण करने का सिद्धांत लिया गया और उसके बाद अब कोलकाता में डिवीजन मुख्यालय को बंद कर और अपनी खानों को नियंत्रित कर उसके स्थान पर राउरकेला स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के प्रतिवाद में सेल के कर्मचारियों ने वेतन संशोधन की मांग को लेकर 30 जून को हड़ताल का आह्वान किया। ডিএসপিএমইউ আইএনটিটিউসির তরফ থেকে দুটো কারণে করছি, দুটো ইস্যু। একটা হচ্ছে সেল ওয়ার্কারদেরকে অবিলম্বে বেতন চুক্তি করতে হবে, 4.5 বছর হয়ে গেছে এই বেতন চুক্তি নিয়ে একটা টালবাহানা চলছে, যা আমরা চাইছি অবিলম্বে এই বেতন চুক্তি করা হোক। আর একটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে মোদী সরকারের যে ইস্পাত মন্ত্রক আছে, তারা সেলের যে আমাদের র মেটেরিয়াল ডিভিশনের হেড অফিস, ঐতিহ্যবাহী একটা অফিস কলকাতাতে ছিল, সেই কলকাতা অফিসকে এখান থেকে স্থানান্তর করে এটাকে দুটো পার্টে ভাগ করে একটা বোকারো এবং একটা হচ্ছে রাউরকেলার আন্ডারে করে দিচ্ছে। আমাদের এটার এগেনস্টে আমাদের নেত্রীর প্রতিবাদ। আমাদের অর্থমন্ত্রী গতকালকে ধর্মেন্দ্র প্রধান, যিনি স্টিল মিনিস্টার, তাকে চিঠিও করেছেন। আমাদের একটাই কথা যে আরএমডি ডিপার্টমেন্টে সঙ্গে অনেক মানুষ জড়িয়ে আছে, প্রায় 20,000 এমপ্লয়ি খনি অঞ্চলগুলোতে জড়িয়ে আছে। এবং হচ্ছে আমাদের এইখানে কলকাতা অফিসে 150 জন আমাদের আধিকারিক আছেন, 80 জন আমাদের কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার এবং 50 জন আমাদের ওয়ার্কাররা আছেন। কোনোভাবে এটাকে সরতে দেওয়া যাবে না।
আমাদের নেত্রীর নির্দেশে আমরা অলরেডি এটা আন্দোলনের মধ্যে চলে এসেছি। আর দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে পোলানি মাইন্স আছে বা ইস্কোর যে গোয়া মাইন্স থেকে চিচিরা এবং হচ্ছে আপনার যে চাষনালা রামনগর যে মাইন্সগুলো আছে সেই মাইন্সগুলোকে একদম বোকারো এবং ওখান থেকে ওই রাউরকেলার আন্ডারে করে দিয়ে আমাদের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 39 नंबर वार्ड अंतर्गत काली पहाड़ी के छाता पत्थर स्थित संकट मोचन महावीर मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का किया गया आयोजन। आसनसोल नगर निगम के 39 नंबर वार्ड अंतर्गत काली पहाड़ी के छाता पत्थर स्थित संकट मोचन महावीर मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रथम दिन गुरुवार को 51 महिलाओं एवं युवतियों की सहायता से भव्य कलश यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान छाता पाथर स्थित महावीर मंदिर से कलश लेकर बागबंदी छठ घाट तक गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। उसके बाद बागबंदी छठ घाट से पंडित प्रेम शंकर पांडे के सानिध्य में कलश में जल भरकर वापस मंदिर लाया गया। कलश आने के बाद मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा के लिए वेदी निर्माण की गई। इस अवसर पर छाता पाथर सेवा समिति के मनोज सिंह, अमित सिंह, मनीष सिंह, प्रमोद सिंह, पप्पू ठाकुरी, मिंटू सिंह, मानस दास, संटू चौरसिया, धनमन मिश्रा, विजय मिश्रा, अरुण प्रसाद, देवेंद्र पांडे, बाबन दुबे, बच्चा दुबे, रामनाथ सिंह, गाजू बावरी, सन्नी सिंह, विशाल सिंह, विनोद सिंह, विकास सिंह, अर्जुन राजवंशी, राजकुमार साव, अशोक मिस्त्री सहित अन्य कई भक्तगण उपस्थित रहे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज शहर में पिछले कई दिनों से पानी के अवैध कनेक्शन की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर बोरोदो प्रशासक पूर्ण शशि राय के निर्देश पर असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने रानीगंज 93 नंबर वार्ड स्थित विवेकानंद पल्ली और तिवारीपाड़ा में जांच अभियान चलाया। इस दौरान तकरीबन 25 से 30 घरों में अवैध कनेक्शन पाए गए। रानीगंज शहर में पिछले कई दिनों से पानी के अवैध कनेक्शन की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर बोरोदो प्रशासक पूर्ण शशि राय के निर्देश पर असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने रानीगंज 93 नंबर वार्ड स्थित विवेकानंद पल्ली और तिवारीपाड़ा में जांच अभियान चलाया। इस दौरान तकरीबन 25 से 30 घरों में अवैध कनेक्शन पाए गए। इलाके के भूदेव पांडे के घर में भी अवैध नल का कनेक्शन पाया गया, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके के रहने वाले सोनू लोगों को अवैध रूप से कनेक्शन दिलवा रहे हैं। लोगों को पानी के कनेक्शन दिलाने के लिए वह लोगों से 12,500 रुपए और घर के टैक्स के कागज भी मांगते हैं। लोगों का कहना है कि उनके द्वारा मांगे गए सभी कागजात उन्होंने दिए, लेकिन इसके बावजूद भी पानी का कनेक्शन वैध नहीं है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने लोगों से कहा कि वे खुद से बोरो कार्यालय में जाकर पानी के कनेक्शन की अप्लाई करें ताकि उन्हें वैध कनेक्शन मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि अगर दोबारा इस तरह से अवैध कनेक्शन पाए गए तो लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनू भैया नाम का है, यहीं पे रहते हैं, वही दीवा है। वो बोले टैक्स का कागज दे दो और पैसा दे दो, हो जाएगा। हम लोग समझ नहीं सके, हम लोग समझे कि ये लीगल काम है, इसीलिए हम लोग दे दिए हैं। तो अभी जो बोरो ऑफिस से आके मतलब आपका नल का जो इलीगल कनेक्शन मतलब काटा जा रहा, तो इसका मतलब उनको क्या उनका विरुद्ध में कुछ स्टेप कुछ लेंगे? उनको बोले जाएंगे कि हम लोग तो आपको दिए हैं, आप गलती काम करवाए, हम लोग तो फंसे हैं, बदनाम हुए हैं, और उनको साथ में जो पैसा दिए उनसे पैसा भी लेंगे। कितना पैसा दिए थे? उनको दिए हैं सर 12,500। 12,500 रुपये। अच्छा, आप लोग बोरो ऑफिस में जाके डायरेक्ट क्यों नहीं लिए? सर हम लोग गए थे एक बार टैक्स कटाने, तो उस समय से ही काम होता है दलाल का जरूर, तो हम लोग समझ नहीं सके, हम लोग सोचे हो सकता है ऐसे, इसीलिए हम लोग। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अभिषेक पांडे। जगह का नाम? ये नाम विवेकानंद पल्ली
विवेकानंद पल्ली नाम। अच्छा, ये जो इलीगल नल का कनेक्शन आज बोरो ऑफिस से यहाँ मतलब डिस्कनेक्ट करने आया है, तो किस लिए, मतलब आप लोग इलीगल लाइन किससे लिए थे नल का? सोनू से। ये क्या करता था सोनू, क्या काम करता है? भाई हम लोग यहाँ ज़्यादा दिन से नहीं हैं, हम आपको बता नहीं सकते क्या कारोबार करता है। अच्छा, तो आप लोग उन लोग से मतलब कुछ ही क्या दिन पहले यहाँ है। हाँ। अच्छा, क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या दिए थे लाइन लेने के लिए? वो कागज कर दिया और टैक्स का कागज दिया। तो अभी जो आज काट के जा रहा, तो आप लोग क्या मतलब ये कीजिएगा? ये तो इलीगल लाइन आप लोग की मतलब डायरेक्ट बोरो ऑफिस से क्यों नहीं लिए थे? सर हम लोग समझ नहीं पाए, वो हम इतने जानते हैं कि पानी ऐसे लिया जाता है, हमको ये मालूम नहीं था, हम लोग अनलीगल मैंने भूल में कर दिया है। और ये जगह का क्या नाम है? विवेकानंद पल्ली। तिवारी पड़ा आता है क्या? नहीं, काली मंदिर विवेकानंद पल्ली अलग पड़ा है, हथिया तालाब से सटा हुआ। आपका नाम? मेरा नाम भूदेव पांडे। খবর পাই রাতে যে হচ্ছে যে এখানে একটা ইলিগেল কানেকশন হয়েছে আমাদের তিয়াড়িপাড়াতে। এখানে একটা কোনো সাহা চানাচুর ফ্যাক্টরি আছে, সাহা চানাচুর ফ্যাক্টরির পাশে। তো আমাদের এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যিনি আছেন তিনিও আমাকে খবর দিয়েছিলেন। আমরা সব মিলিয়ে আমরা সেই রাতেতেই আমরা এখানে এসেছিলাম, এসে দেখি হ্যাঁ সত্যি করে এরা অবৈধ এরা কানেকশন নিয়েছে এবং এখানে কাউকে টাকা দিয়ে এরা সব করছে। আমরা রাতের বেলায় জেনে তারপরে আমরা আজকে এসেছি, আমরা লাইনটাকে কেটে দিলাম। এই ভূদেব পান্ডে যিনি এই বাড়ির ওনার, তিনি যখন কানেকশনটা নিয়েছেন বলছে সোনু বলে কোনো পাবলিকের কাছ থেকে নিয়েছেন, তো তার বিরুদ্ধে কি মানে স্টেপ নেবেন? সোনু বলে যে লোকটার নাম করছে, আমরা ওকে বারবার ট্রেস করার চেষ্টা করছি, পাচ্ছি না। যদি ওকে দেখা পাই ওর বিরুদ্ধে আমরা যথারীতি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব। স্যার, ইতিমধ্যে শহর জুড়ে মানে কতগুলি ইলিগাল কানেকশন মানে ডিসকানেক্ট আমরা তো এর আগে করেছিলাম, বিভিন্ন জায়গায় করেছি। আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা মোটামুটি ধরুন প্রায় 20-22টা লাইন আমরা কেটে দিয়েছি। আপনার নাম ডেজিগনেশন? আমার নাম ইন্দ্রজিৎ কোনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, রানীগঞ্জ বোর্ড অফ ট্রেড দায়িত্ব আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शिल्पांचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां आम लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं कई घर भी बारिश की वजह से ढह रहे हैं। आपको बता दें कि जामुड़िया ब्लॉक की चिचुड़िया ग्राम पंचायत के चक तुलसी गांव के रहने वाले एक किसान परिवार का खटाल गिर जाने से 12 बकरियों की मौत हो गई। शिल्पांचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां आम लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं कई घर बारिश की वजह से ढह जा रहे हैं। जामुड़िया ब्लॉक के चिचुड़िया ग्राम पंचायत के चक तुलसी गांव के रहने वाले एक किसान परिवार के खटाल गिरने की वजह से 12 बकरियों की मौत हो गई। बुधवार की रात घटना की खबर मिलने के बाद चिचुड़िया ग्राम पंचायत के प्रधान विश्वनाथ सांगई घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने किसान परिवार को आपदा के समय राहत सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बता दें कि पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, इसी की वजह से कई जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आई है। कहीं जान माल का नुकसान हुआ है तो कहीं लोग बाल बाल बच रहे हैं। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी दौरान गुरुवार को विद्युत की चपेट में आकर एक गाय की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों द्वारा किया गया प्रदर्शन। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुरुवार को विद्युत की चपेट में आकर एक गाय की मौत हो गई। घटना आसनसोल के बर्नपुर स्थित एबी टाइप इलाके में घटित हुई है। घटना के बाद लोगों ने विरोध दिखाना शुरू किया। लोगों का आरोप है कि बिजली का तार खुला रहने की वजह से अक्सर ही बेजुबान जानवरों की मौत होती है। सेल इसको अधिकारी से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। लोगों का आरोप है कि जिस तरह से पूरे इलाके में विद्युत के तार बिछे हुए हैं, उसे तो आज एक जानवर की मौत हुई है। आने वाले दिनों में अगर स्थिति यही रही तो लोग भी इसकी चपेट में आने लगेंगे। ঘটনা হয়েছে কি আমরা দেখলাম একটা গরু যাচ্ছিল, এনি আছেন গরু মালিক নিয়ে যাচ্ছিলেন, তারটা ওইখানে ফুলা ছিল, তাহলে গিয়ে সেটে গেছে, গাড়িটা ফাট করে গিরে গেল। আর এই জায়গা সব জায়গায় এরকমই কাজ হয়েছে, কোনো জায়গা ভালো কাজ হচ্ছে না, খালি অল্প এসে একটা টেপ মেরে দিচ্ছে বাস। তার কি খোলা ছিল? হ্যাঁ অল্প ছিল টেপ। তারপর আমাদেরকে বললো কি তোমরা যাও টাউন ডিপার্টে গিয়ে বলো। তারপর আমরা গেলাম বলতে যে এরকম ঘটনাটা হয়েছে, ওইখানে অফিসারগুলো বলছে কি মিটিং চলছে, পরে আসবে, তারপর কথাবার্তা হবে। সেদের বিষয় আছে যে কখনো বলছে লোক নেই, কখনো বলছে জিনিস নেই। না মানে কি হ্যাঁ
এই অবস্থাতে হচ্ছে যে কয়েকটা জায়গাতেই আমাদের এদিকে কয়েকটা জায়গাতেই এরকম কেবিলকে ওপরে রেখে হচ্ছে টেপিং করা আছে। সেই টেপিংটা অনেক দিনের করা আছে, কখনো খুলে যাচ্ছে, কখনো কিছু হচ্ছে। কয়েকদিন আগে একটা কুকুর মারা গেছিল, আজকে একটা গরু মারা গেছে। এ তো বলা হচ্ছে বারবার, কোনো তার ফিডব্যাক নেই। তো এ তো ধরুন গরু, আজকে কোনো বাচ্চাও তো মারা যেতে পারে, কোনো মানুষ নিশ্চিত হতেই। এখানে প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু এখানে দেখছেন আপনি ঘটেছে। এখানে ওপেন একটা ছিল, ওপেন জয়েন্ট ছিল, গরু হাঁটতে হাঁটতে গেছে, ওখানে কারেন্ট খেয়ে মরে গেছে। যখন খবর দিতে গেছে তারপরে কি হলো কি ওরা কোম্পানির লোক এসে এখানে টেপ মেরে চলে গেছে। এবার যদি কেউ মানুষ দেখে বলো না টেপ তো মারা দেখি করে মরলো, এটাই হচ্ছে। তো মানে কি এর আগেও ঘটনা ঘটেছে? এর আগে আপনার কুকুর একটা মারা গেছিল গ্যারেজের পাশে। তো এতে এত পরিবার থাকে, এটাও হতে পারে কোনো ছেলে হয়তো বাচ্চা খেলতে খেলে গেলো, টাচ হয়ে গেল, হয়তো কোনো বয়স্ক লোক গেলো, বুঝতে পারিনি, টাচ হয়ে গেলো, এরকম হতে পারে। আপনারা জানিয়েছেন থাকে? হ্যাঁ, গলার আগেই ছিল, টনপুজো বলে এসেছে। যেরকম ওপেনভাবে লাইন, ইলেকট্রিক লাইন পড়ে আছে, এটা তো ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে কেন পড়ে রয়েছে। প্রায় এখানে লাইনটা কাদের, ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট না স্কুল? স্কুল মানে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট বলতে স্কুল एरिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार की सुबह अजय नदी पर अस्थायी पुल टूट जाने के बाद लोगों को आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। इसी कारण इलाके के ही कुछ लोग प्रशासन की अनुमति के बिना ही नौका चला रहे थे, जिस पर लोगों की खचाखच भीड़ देखी गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा अवैध तरीके से चलाई जा रही नौकाओं को जब्त किया गया। गुरुवार की सुबह को अजय नदी पर अस्थायी पुल टूट जाने के बाद लोगों को आने जाने को लेकर काफी असुविधा हो रही है, जिसे देखते हुए इलाके के ही लोगों ने अजय नदी पर नौका प्रशासन के बिना अनुमति के ही सुबह को चला रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नौका पर खचाखच लोग भरे हुए थे, किसी भी समय दुर्घटना घट सकती थी। पुलिस को जानकारी मिलते ही नौका को रोक लिया गया। जानकारी के मुताबिक अजय नदी पर अस्थायी ब्रिज से लोग आना जाना करते थे, मगर झारखंड में अधिक बारिश होने के कारण अजय नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा, जिसके कारण अस्थायी ब्रिज पानी में बह गया और उसके बाद स्थानीय लोगों ने ही आने जाने के लिए बांस के द्वारा चाला बनाया गया, वह भी पानी में बह गया, जिसमें 2 लोग पार कर रहे थे, वह भी पानी में डूब गए। बाइक भी उसमें गिर गई थी। किसी भी तरह से स्थानीय लोगों ने उन दोनों को बाहर निकाला, परंतु बाइक का पता नहीं चल पाया। उसके बाद नौका अवैध तरीके से वहां चलाई जाने लगी, जिसको पुलिस द्वारा जब्त किया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दुबराजपुर कॉलोनी घाट से जयदेव घाट नौका से लोगों को पार कराया जा रहा था। पुलिस की तरफ से बताया गया कि नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है, काफी तेज धार में पानी बह रही है, जब कभी भी दुर्घटना घट सकती है, जिसके तहत अजय नदी के दोनों तरफ ही पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाई गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, और जिस पर सदैव पुलिस की निगरानी बनी हुई है। পড়ে গেলি মরে যাবো, ভয় লাগে তো করবো কি, যেতে তো হবে। কোথায় যাবেন? আমি জয়দেব যাবো ধানের বিছানা দিয়ে। ওইদিকে ব্রিজ নেই, জয়দেব ব্রিজ তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো। এই যে চাষের সময় সমস্যা হচ্ছে না? চাষের সময় সমস্যা হচ্ছে তো করবো কি, যেতে তো হবে। চরম তাহলে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে, চরম জীবনে ঝুঁকি না নিলে খাবো কি, সারা বছরকে খাবার না গেলে তো বিচন না হলে ধান পোতা হবে না। এই যে এইভাবে যাবেন এই নৌকার মধ্যে কোনো রকম তো লাইফ জ্যাকেট বা কিছু তো নেই? না, কিছুই নাই, পড়ে গেলে মরে যাবো। আপনার নাম? নদিয়া ডোম। এখন তো চরম দুর্ভোগ। খুব অসুবিধা এখন আমাদের পার করতে। কীভাবে পারাপার করবে? পার করতে এই নৌকা দেখি ঠিক করলে তাও যেতে হবে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? 1 ঘন্টা হয়ে গেল। কখন যাবেন কোনো কোনো গ্যারান্টি না কখন যাবো। কোথায় যাবেন? যাবো আমি একটু জয়দেবী যাবো। কর্মসূত্রে? কী করতে যাবেন? আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি। খুব সমস্যা হবে এখন। কাজ এগোচ্ছে না? না এগোচ্ছে না, এখন বন্ধ আছে, এই জলে কী কাজ করবে, এখন বৃষ্টি আসছে, কী কাজ করবে। আপনার নাম? মনা হাজরা। ভয় লাগে না? না, ভয় লাগে না, যারা পার হয় তাদেরকে ভয় লাগে না, যারা পার হয় না কখনো তাদেরকে ভয় লাগে। তাহলে চরম সমস্যা। হ্যাঁ, মানে ওইদিকে তো একটা ঘাট আছে, সেটার কি অবস্থা? সেটা ভেঙে গেছে, মাচা ছিল, মাচাটা ভেঙে গেছে, ওদিকে পারাপার এখন বন্ধ হয় না, এটাই পারাপার হয়। এখন তো নৌকা দেখি খারাপ হয়ে গেছে। খারাপ হয়ে ওরা ঠিক করছে, এটা ঠিক করে কোথায় আবার যাবে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? আমার 8 ঘন্টা হলো। আপনার নাম? আমার নাম মধুসূদন সূত্রধর। কোথায় যাবেন? আমি যাবো জয়দেব। ভয় লাগে না? ভয় লাগে, বড় বানাইলে ভয় লাগে। ভয়ও নেই, ভরসা
ভরসাও নেই। ভয় নেই, ভরসা নেই। তাহলে কি চরম সমস্যার মধ্যে যাতায়াত? হ্যাঁ, খুব সমস্যার মধ্যে যাতায়াত করি। বলছি, এটা কারা ডাক নেই নৌকা ঘাটে? ডাক্তার পঞ্চায়েত থেকে ডাক হয় গ্রামে। এখন তো নৌকা বন্ধ, যেটা এখন তাও তো নৌকা চলছে। এখন তো নৌকা বন্ধ, ওই ঘাটেও বন্ধ এবং গ্রামবাজার পঞ্চায়েত থেকে সমস্ত নৌকাই বন্ধ রাখার এখন নির্দেশ দিয়েছে। তারপরেও নৌকা চলছে। কি বলবেন? জানেন কিছু? না। আপনার নাম? আমার দীপক হাজরা, নৌকা চালক। অসুবিধা হচ্ছে, এই নদী এত বান, ব্রিজ হলে ভালো হতো। ওইদিকে তো ঘাট বন্ধ। ঘাট তো পুরো বন্ধ আছে, যাতায়াত করলে ভালো হতো। কি করে পারাপার করছেন এখন? এখন নৌকাতে। নৌকা তো বিকল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, প্রচুর অসুবিধা তো এখন। খারাপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, খারাপ হয়ে গেছে, ইঞ্জিন এখন খারাপ আছে। এখন মোটামুটি কখন ঠিক হবে ঠিক নাই। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেল। সমস্যা কি সমাধান? সমাধান এখন তো ব্রিজ করলে ভালো হতো। ব্রিজটা তো করছে। ব্রিজ এখন কতদিন হবে ঠিক নেই তো। 2 বছর হয়ে গেল, 3 বছর চলছে এখন। চরম দুর্ভোগ। হ্যাঁ, প্রচুর তো এখন ইয়ে চলছে। কোথায় যাবেন আপনি? যাবো জয়দেব। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ ডোম। সমস্যার মধ্যেই পড়ে আছি এখন। নদীতে বাঁধ প্রচুর, নৌকা ছাড়া তো পেরে পারার কোনো উপায় নেই। ব্রিজটা হলে খুব ভালো হয় আমাদের। তাড়াতাড়ি যদি ব্রিজের কাজ শেষ হয় তাহলে খুব ভালো হয়। এখন খুব কষ্টের মধ্যে আছি, খুব কষ্টে পারাপার করতে হয়। সবসময় পেরোনো যায় না, জল বেড়ে, নদীতে জল বাড়ছে, ওই কারণে পারাপার করতে অসুবিধা। নৌকাতে খুব রিস্কের ব্যাপার। খুব এখান থেকে আমরা দুর্গাপুরের দিকে কাজ করতে যাই, অনেক কাজে যাই, অনেক কারখানাতে কাজ, আরও ব্যবসার জন্য যাই। যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আপনারা তো চরম সংকটের মধ্যে বাড়িতে মানুষজন পেরোচ্ছিল, গাড়িও দুখানা পড়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, ওখানে তো বন্ধ করে দিয়েছে, মাচা ভেঙে গেছে। এখানে প্রশাসনিকভাবে বন্ধ আছে এখন। তো আমাদের খুব সমস্যায় আছে এখন, এপার ওপার করতে খুব সমস্যা। কতটা যেতে হয়? অনেকটা, প্রায় 50 কিলোমিটারের বেশি। আমাদের জয়দেব থেকে যদি দুর্গাপুর যাই, ইলামবাজার হয়ে পানাগড় হয়ে 50 কিলোমিটার ঘুরতে হবে। অনেক টাকার খরচার ব্যাপার। সোমনাথ হেমব্রম। হ্যাঁ, दुर्गापुर कारखाना। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।